کہا آ کر کہا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ نے انگلی سے سورج کو نکالا، اب جائے گا کب؟ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، سورج آ گیا، جائے گا کب؟ ہمارے نبی کا جواب سننا کیسا اچھلتا دھوم مچاتا ہوا جواب، کیا فرمایا؟ ارے مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا، علی کا پوچھ نماز کب ختم ہوگی۔ مجھے مت پوچھ کہ نماز، مجھے مت پوچھ سورج کب ڈوبے گا، علی کو پوچھ نماز کب۔ بہت اچھی۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کے بیچ آج پھر سے قاری احمد علی جی کا نیو بیان لے کر کے آیا ہوں، اور ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے جو اپنے انگلی مبارک سے چاند کو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کرتے ہیں۔ اب ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا اور پورے سن کے جائیے گا دوستوں۔ زہر کی نماز ہو گئی، کھانا وانا چل رہا ہے، سفر میں ہے، اللہ کے رسول بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی ساتھ میں کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کون سی نماز پڑھا چکے؟ ظہر کی، کھانا وانا بھی ہو چکا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات یاد آئی کہ کچھ چیزیں لانا ہے، تھوڑا دور سے کچھ چیزیں لانا ہے، کون لے کر آئے گا، کون لے کر آئے گا، اسے دور سے لانا ہے، کون لے کر آئے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا سب سے بہادر جوان لانے والا کون؟ شیر خدا۔ کون شیر خدا؟ کون؟ اللہ کے رسول پاک نے کہا کہاں؟ اور شیر خدا حضرت علی۔ کہا دیکھو دیکھو وہاں جانا ہے، بہت دور جانا ہے، اور وہ چیزیں لانا ہے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ جاؤ جلدی گھوڑے پر بیٹھو، گھوڑے پر بیٹھو جاؤ، اور دیکھو علی راستے میں رکنا نہیں ہے، راستے میں رکنا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کچھ بھی کرنا نہیں، جاؤ اور جو چیز میں نے مانگا وہ لو اور سیدھے میری خدمت میں پہنچاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا، شیر خدا تیار۔ حضرت علی گھوڑے پر بیٹھے اور جو گھوڑوں کی ٹاپیں جو چلی ہے، اور حضرت علی جو دوڑے گھوڑا لے کر دوڑے دوڑے گئے۔ اب وہ تو بہت دور بھیجا تھا، یہاں وقت گزرتا گیا، عصر کا وقت آ گیا۔ بولو کس کا وقت آیا؟ عصر کا وقت۔ اذان کہا چلو عصر کی اذان دی جائے۔ عصر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، عصر کی اذان ہوئی، سارے صحابہ نے وضو کیا، عصر کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ بولو عصر کی نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ عصر کی نماز سارے صحابہ نے کہا ہمارے نبی چلے، آرام بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی بھی ایک قدم نہیں بڑھائے گا، میرا علی آنے والا ہے۔ کون آنے والا ہے؟ میرا علی آنے والا۔ بس اس طریقے سے انتظار انتظار انتظار، اتنے میں تھوڑی دیر میں دیکھا وہ ریگستان میں غبار اٹھ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، آ گئے۔ کون آ رہے؟ علی۔ وہ دور سے غبار اڑ رہا اور گھوڑے کی ٹاپیں زور زور سے آوازیں آ رہی، اور تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، السلام علیکم سلام کیا، لبیک کہا، اور اس کے بعد میں سیدھے جو امانت تھی اللہ کے رسول کے قدموں پر رکھ دی، قدموں پر امانت۔ اللہ کے رسول پاک اصلا بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا میرے پیارے نبی کہیں رکا نہیں، کہیں کھایا نہیں، کہیں پیا نہیں، کہیں ٹھہرا نہیں، یوں گیا اور یوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ علی، تھک گئے ہو بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کو بازو میں بٹھایا، دیکھو حضرت علی ایسے بیٹھے، یہ سنو اس طریقے سے دونوں پاؤں رکھ کر کون بیٹھ گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھے۔ اب وہ بیٹھنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹھنا تھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی مجھ کو نیند آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مجھ کو، اور پھر کیا کیا؟ سیدھے اپنا سر علی کی گود میں رکھ دیا، لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کہاں رکھ دیا؟ حضرت علی کی گود میں۔ لیکن معاملہ ایسا ہے کہ حضرت علی پریشان ہے، حالانکہ گود میں کن کا سر ہے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، لیکن علی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ ارے بتاؤ نا، حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی؟ سب بتاؤ، پڑھی؟ یہ ظہر پڑھ کے گئے تھے اور کیا کہتے؟ میں رکا نہیں، میں ٹھہرا نہیں، میں پیا نہیں، میں کھایا نہیں، یوں گیا اور یوں، اور عصر کی نماز تو یہاں ہو گئی، عصر کی نماز پڑھے۔ اب حضرت علی کیا فرماتے وہ سنا۔ حضرت علی فرماتے میرے نبی کا سر مبارک میری گود میں، لیکن میں پریشان، میں یوں دیکھوں آسمان کو، اس لیے کہ سورج ہے ڈوب جائے گا، عصر کی نماز ختم۔ ارے بولو نا، سورج ڈوب جاوے تو عصر کی نماز قضا ہو گئی، اب کون سی نماز آ جائے گی؟ مغرب، تو عصر تو جائے۔ تو حضرت علی فرماتے میں بے چین بے چین، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھو، کبھی سورج کو دیکھو، ڈوب تو نہیں جائے گا، ڈوب تو نہیں جائے گا، کبھی نبی، اور ہمارے نبی آرام سے سوئے رہا ہے، سو جا رہے، سوئے رہے، سوئے جا رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کا وہ جملہ کتنا پیارا، کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت علی فرمائے میں ایسا حیران تھا، اور کیوں حیران تھا؟ کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتا، کبھی زمین کے سورج کو دیکھتا۔ بھائی گود میں کون تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور تھا، کبھی یہ چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان کے سورج، وہ بھی چمکتا، یہ بھی چمکتا، وہ بھی چمکتا، یہ بھی چمکتا، لیکن خیال آتا کہ اٹھاؤں اور کہوں میری عصر کی نماز باقی ہے، لیکن خیال آتا تھا علی اگر نیند خراب ہو گئی تو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی پریشان، اتنے پریشان کہ کیا کروں، اللہ کے رسول کو اٹھا بھی نہیں سکتا، اور سورج بھائی وقت رکے گا، بے وقت رکے گا، سورج ڈوب جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہے، غروبت الشمس، سورج ڈوب گیا۔ بولو سورج، ارے بولو پورا مجمع بولو سورج ڈوب گیا، اندھیرا اندھیرا چھانے لگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی، جیسے آنکھ مبارک کھلی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھوں کو پھیرا اور کہا
अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मगरिब का वक्त हो गया, अजान दो। ए बिलाल, बिलाल भी थे, बिलाल बिलाल अजान दो। हजरत बिलाल अजान देने की तैयारी अभी तो शुरू की, अजान देने का इरादा किया, हमारे नबी के कान में रोने की आवाज आई। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा कौन रो रहा, देखा तो अली वहां कोने में बैठ के रो रहे। कौन रो रहे, बोलो कौन रो रहे? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली रो रहे, तुम रो रहे हो, क्या हुआ? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तुम रो रहे हो, क्या मामला? फरमाया असर की नमाज कज़ा हो गई। अल्लाह क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल जब से ईमान लाया, अल्लाह की कसम एक नमाज कज़ा नहीं हुई थी। जब से ईमान लाया हूं तब से आज तक मेरी एक भी नमाज कज़ा, आज पहली मर्तबा मेरी असर की नमाज कज़ा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा अम्मा सल्लल्लाहु पढ़ी क्यों नहीं? अरे पढ़ी क्यों नहीं? अल्लाह के रसूल कैसे पढ़ता? आपके आके खिदमत में बैठा, आपने बाजू में बिठाया, आपने अपना सर मुबारक मेरे पांव पर रखा, मैं सूरज को देखता गया, सूरज डूब गया, कहा मुझे उठाया नहीं? अल्लाह के रसूल 100 जाने कुर्बान कर सकता है, लेकिन आपकी नींद को तो खराब नहीं कर सकता। बस ये प्यार मोहब्बत की बातें हुई, अल्लाह के रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल के चेहरे पर तो हज़रत अली कहने लगा अल्लाह के रसूल मैं रो रहा हूं, मेरी असर की नमाज गई, आप हंस रहे हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया खड़े हो जाओ, अली खड़े हो जाओ। हज़रत अली खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए, बहुत सारे सहाबा खड़े हो गए। कहा अय्ना ग़रूबती शम्स, हमारे नबी ने पूछा कहां सूरज कहां डूबा? अली अरे सबको मालूम है सूरज कहां डूबा, लेकिन फिर भी पूछ रहे अली कहां डूबा? अली ने कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ये जगह है, यहीं से मैं सूरज को देख रहा था, डूब गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली अगर तूने सूरज को डूबते हुए देखा है तो आज उठते हुए भी तू देखेगा। हजरत अली हैरान खड़े, क्या मामला, ये मामला क्या? हजरत अली खड़े, सहाबा खड़े, हमारे आका सासम, सब कह दो सुभान अल्लाह कह दो, हमारे आका सासम ने क्या किया सुनो। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु, पूरा मजमा सल्लल्लाहु, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली, सुनना, फरमाया अली मेरी उंगली मुबारक को देखते जाओ। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां सूरज डूबा है वहां हमारे नबी ने देखो इस तरह, हमारे नबी ने अपनी उंगली मुबारक को इस तरह किया। उसके बाद हमारे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को यूं ऊपर किया, सूरज ना निकलना शुरू किया, सूरज ने निकलना, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो सूरज ने। अब सुनना, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को उठाते गए, ऊपर करते गए और सूरज निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, यहां तक कि हमारे नबी ने उंगली मुबारक को सीधे ऊपर किया, सूरज ऊपर आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, चिलचिलाती गर्मी आ गई। हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए कहा अली कौन कहता है तेरी असर की नमाज कज़ा हुई? अभी तो असर का वक्त शुरू हो रहा है। पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल पढ़ लो असर? कहा पढ़ ले, आज तक कज़ा नहीं हुई तो आज कैसे कज़ा होगी, पढ़ ले असर। हजरत अली ने वजू किया, सुना, वजू किया, अल्लाहु अकबर, असर की नमाज अली ने शुरू की। लेकिन दिल में ख्याल आया अली तेरी वजह से डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, बाकी पूरी दुनिया की असर हो गई, अरे पूरे मदीने की असर हो गई, सिर्फ तेरे अकेले की वजह से डूबा हुआ सूरज वापस आया, पूरे खुदा का निजाम बदल गया, जो सूरज डूब गया वापस। तो हजरत अली नमाज में रोने लगे। अरे बोलो नमाज में, अब जब नमाज में रोएंगे तो नमाज लंबी होगी कि नहीं होगी? और अली की नमाज लंबी होगी ना, हमारी नमाज। हम तो देखा कि इमाम ने ज्यादा लंबा पढ़ा ना, करेगा को जाएगा, अरे यानी मतलब भाई रुकू कर बहुत हो गया, ये सब ढोंग हम लोग करते हैं। नमाज में जितना ढोंग करता है ना, कभी टीवी सीरियल में इतना ढोंग नहीं करता ना। तरावी में ढोंग देखा आपने? तरावी में मैंने अपनी आंखों से देखा। तरावी में क्या करेगा मालूम? पढ़ने आएगा इमाम साहब अल्लाहु अकबर शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम शुरू कर दिया इमाम साहब, ये घूम रहा है इधर, पीछे घूमेगा। अब इमाम साहब भी आगे पढ़ेगा, जो भी वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, इमाम साहब पढ़ेगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते इमाम साहब कहेगा ना यालमून, मालूम है रुको, धड़ भागते भागते रुको में खड़ा हो जाएगा। अरे भाई इसका मतलब है कि जब तक कुरान पढ़ता था तेरे को कुछ एलर्जी होती थी? और कुछ लोग तरावी होगी ना, तरावी होगी नहीं पड़ेगा, क्या क्यों? बहुत लंबी पढ़ाता है, पाँव बहुत दुखता है, पाँव बहुत। और अगर किसी का इंतजार करना हो कि वो खिड़की पे आने वाली है तो कितनी देर खड़ा रहता है, तब तेरा पाँव नहीं दुखता। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? हाँ सही ना। चलो हम वाक्य पर आ जाए, फिर बात पर आते, वाक्य पर आ जाए। हाँ, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को उठाते गए, कहो सुभान अल्लाह, उठाते गए, कहो सुभान अल्लाह, उंगली मुबारक को उठाते गए, सूरज निकलता गया, यहां तक कि
हमारे नबी पाक की उंगली मुबारक सीधे सूरज आसमान पर और चिलचिलाती गर्मी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली, अली कौन कहता है कि तेरी असर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज अभी भी ऊपर है, अपने असर की नमाज पढ़ ले। हजरत अली ने अल्लाह अकबर, ख्याल आया अली तेरे वास्ते आज सूरज भी वापस आ गया, रोना शुरू कर दिया तो नमाज भी। अब पूरे मजमे ने देखा हजरत अली नमाज पढ़ रहे और रोए जा रहे। अब वो बहुत सारे साहबा थे ना, उनमें गांव वाले थे। गांव वाले समझते हो, देहात के एक साहबी थे, बेचारे देहात वाले, वो हैरान हो गए कि ये सब क्या हो गया। भाई वो देहात वाले पहली मर्तबा आए, कहा ये क्या हो गया, सूरज डूब गया, उंगली बताई तो निकल गया, अली नमाज पढ़ने लगे, ये क्या। तो वो देहाती साहबी को कुछ समझ में नहीं आया, कहा आकर कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल आपने उंगली से सूरज को निकाला, अब जाएगा कब। आपने उंगली से इशारा किया, सूरज आ गया, जाएगा कब। हमारे नबी का जवाब सुनना कैसा उछलता धूम मचाता हुआ जवाब, क्या फरमाया, अरे मुझे मत पूछ सूरज कब डूबेगा, अली का पूछ नमाज कब खत्म होगी। मुझे मत पूछ कि नमाज, मुझे मत पूछ सूरज कब डूबेगा, अली को पूछ नमाज कब। मेरे प्यारो, दुनिया कहती है कि गया वक्त वापस आता नहीं, लेकिन नबी की उंगली मुबारक सूरज पर भी हुकूमत करते, इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया। कहो सुभान अल्लाह। और इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े भी कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कसमें खाकर ये 5 जुमले हजरत जिब्राइल को इनायत फरमाए। हजरत जिब्राइल ने कसमें खाकर ये 5 जुमले हमारे नबी को अता फरमाए। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम मुबारक खाकर बेटी फातिमा को ये 5 जुमले दिए और फरमाया बेटी फातिमा पढ़ती रहे, अल्लाह गैब से तेरी रोटी का इंतजाम करता रहेगा, मालदार बनाता रहेगा, अगर मालदार नहीं बनाएगा तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाएगा। हजरत अली ने फरमाया फातिमा दुनिया लेने के लिए गई थी, दीन लेकर आई और तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन है फातिमा, तेरे सदके में उम्मत की रोजी के दरवाजे खुल गए। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन। 60,000 कुरान करीम 24 घंटे में पूरा करते। जब हजरत अली ने कहा तो लोगों ने मानने से इनकार किया, कहा हम नहीं समझ सकते, आप कुफा के अमीर है, लोगों का फैसला करते, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका खाना है, आपका पीना है, आपके इतने सारे काम है। मेरे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तुम में का कोई आदमी मेरे साथ 24 घंटे गुजारे। मेरे दोस्तों, आज भी लिखा एक अल्लाह के वली जिनका नाम है हजरत आरिफ शारानी रहमतुल्लाह अलैह, वो आए और 24 घंटे रहे। फरमाते कसम अल्लाह की हजरत अली सब काम भी करते रहे, 24 घंटे गुजरे, उससे पहले 60,000 कुरान खत्म हो चुके थे। और सुनना मेरे दोस्तों, जब 60,000 कुरान खत्म हो गए तो आरिफ शारानी बेहोश हो गए। कहा मौला अली, हजरत अली ये क्या मामला, 60,000 कुरान आपने खत्म किए। हजरत अली ने कहा चल मेरे साथ चल। कहा मेरे घोड़े को लाओ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका घोड़ा लाए, घोड़े के ऊपर जीन रखी। आपने आरिफ शारानी जो आए थे कौम की तरफ से, कहा देख मेरा एक पांव एक पालान में होगा और दूसरा पांव दूसरे पालान में होगा, उससे पहले मेरा एक कुरान खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये हजरत अली कितनी मेहनत से कुरान को सीखा होगा ना। और मेरे दोस्तों, हजरत अली का इल्म तो बहुत था। कहो हजरत अली का इल्म। किताबों में लिखा है कि हजरत अली का इल्म ऐसा ठाटे मारता हुआ समंदर था कि हजरत अबू बकर कभी मसला पूछने के लिए कोई आता, कहते मुझसे मत पूछो, अली से पूछो। उमर कहते अली से पूछो, उस्मान कहते अली से पूछो। और नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, हमारे नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूं और मेरा दरवाजा अली है। मैं इल्म का शहर हूं और मेरा दरवाजा हजरत अली का इल्म। मैं आपको ला रहा हूं मेरे दोस्तों हजरत अली का इल्म, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अली का इल्म बहुत ऊंचा। कहो हजरत अली का इल्म। उनकी नजर कुरान पर बहुत प्यारी, उनका पढ़ना कुरान का बहुत प्यारा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत उमर का दरबार लगा हुआ है। किसका दरबार? सब सुनोगे ना, उंगली पर फिर गिनना पड़ेगा, गिनोगे नहीं इंशाल्लाह। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, हजरत उमर का दरबार लगा हुआ और इतना मजमा हजरत उमर फारूक का दरबार। और एक बात ये भी समझना, हजरत उमर का रौब और दबदबा बहुत था कि नहीं था? हाँ? मैं कभी कभी कहता हूं मौली हबीब माफ करना, उमर मदीने के भाई थे। उमर मदीने के भाई थे, आज भी भाई है नक्का में। आज जो भाई है ना, एक आदमी ने किसी को पूछा भाई कैसा बनते हैं? कहा एक को गिरा दे दूसरे दिन भाई बन जाएगा।
इसकी टोपी उसको पहना दे, भाई बन जाएगा। किसी को फोन पे धमकी दे दे, भाई बन जाएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक तेरे पास पावर होगा पैसों का। जिस दिन पैसे का पावर चला गया, कोई तेरे चेहरे पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? मदीने के भाई उमर, लेकिन वहां पैसों का पावर नहीं था, नबी की मोहब्बत का पावर था। और कैसा पावर था आपको बताऊं? हजरत उमर का बहुत रौब दबदबा था, बहुत रौब दबदबा। एक मरतबा हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर अकेले हुकूमत करते थे। और जब आप निकलते थे भाई, 22 लाख मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब निकलते थे तो आपकी दोनों चादरों पर 17-18 जगह तो पैबंद लगा हुआ होता था। कैसे बादशाह होंगे मेरे दोस्तों हजरत उमर, लेकिन रौब और दबदबा। एक मरतबा निकले, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह है। अरे बादशाह, और वो भी इतना बड़ा बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे। आज का भाई 22 आदमी को रखे तो समझा मैं ऊंचा हो गया। अगर 22 आदमी मेरे अंडर में काम करते, अरे 22 आदमी काम करते क्या फायदा? वहां 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करते थे। और मेरे दोस्तों एक मरतबा निकले तो सामने से कोई एक आदमी जो शराब पीता होगा, वो शराब की बोतल लेके आ रहा है। अब उसको नहीं मालूम कि यही गली में उमर बादशाह भी आएंगे। अब वो बेचारा शराब की बोतल लेके मस्त अपने घर की तरफ जा रहा, और यहां कौन आ गए? ओ, उसने देखा काम मरा उमर, और हाथ में क्या होगा वो कांपने लगा। वहीं से कांपता छुपा भी नहीं सकता, इसलिए मालूम है उमर की नजर बहुत अजीब और गरीब नजर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के साथ चले जा रहे, और वो बेचारा कांपता बोतल हाथ में लिए करीब आया। हजरत उमर ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत उमर ने कहा बीमार हो? अंत मरीज, तुम बीमार हो? तो कहा नहीं उमर में बीमार नहीं, वालेकुम अस्सलाम करके वो आदमी चला गया। और सोचने लगा अल्लाह ने बचाया। उमर ने शराब को देखा ही नहीं, वो आगे गया, आगे जाके अपनी बोतल को देखा तो उसमें दूध भरा हुआ था। वो हैरान हो गया कि मेरे बोतल में तो शराब थी, ये दूध कैसा हो गया? मेरे दोस्तों गैब से अल्लाह की आवाज आई, अगर तू जमीन पर उमर के गुस्से से डरता है, आसमान पर हम भी उसके गुस्से का ख्याल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे दोस्तों बताओ, भाई होने का हक इन्हीं को है कि नहीं? ये जमीन पर अगर तुम उमर के गुस्से से डरते हो, अल्लाह कहता मैं भी आसमान पर उमर की गैरत का ख्याल करता। तू रो पड़ा, मैंने तेरी शराब को दूध में बदल दिया, मैंने भी उमर के गुस्से का ख्याल कर लिया। मेरे दोस्तों एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, वो गली में एंटर हुए। जैसे गली में एंटर हुए, सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए। यहां से उमर, वहां से नबी, दोनों में एक हंसी, और हमारे नबी मुस्कुराने लगे। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हो गया, मुझे देखकर आप मुस्कुराते क्यों हो, कोई तकलीफ है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। तू जिस गली में कदम रखता है, शैतान उस गली में कदम भी नहीं रखता। मेरे दोस्तों इसको कहते हैं भाई। बाकी फोन पे धमकी देना ये भाई, किसी को मारना धाड़ना ये भाई। अरे भाई बात समझ में आई? ये तो दुकान है, पैसों की दुकान है, जो हराम से भरता है और हराम ही तक ले जाएगा, कभी हलाल तक लाने वाला। 2-4 आदमी सलाम करेंगे, जब तक तेरे पास पैसा है उसके बाद में कोई तुझे देखने को भी तैयार। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब वाक़या बताऊं आपको। किताब है मुस्नद इब्न अबी आला, हदीस की बहुत प्यारी किताब है मेरे दोस्तों, मुस्नद इब्न अबी आला। उसमें इतना अजीब और गरीब वाक़या लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। भाई मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही? जैसा मदारी खेल बताते ना, एक काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही? और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशिया औरत है, वो खेल बता रही है, और वो मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सासम खुद भी खड़े हो गए और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे, और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे, और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी?
आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई? साथ में कहो कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे हैं, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है? अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे? हजरत उमर आए, कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम कर दे, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिनना बहुत अजीब और गरीब बात है। मैं बता रहा था उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता वो अगर